Hello friends, welcome on YouTube channel English by Nikhil Tyagi. I hope all of you are reading very well at your home. Students, we know very well the notification of RRB has been released and SSCP also for mails, I'm right? And students, many notifications for competitive exam are to be released in next months, and expected date is October November, am I right? So students, today I am here to discuss a very important topic for you. Actually, this lecture will be very helpful for banking exams. Okay, it may be SBI PO, IBPS PO, clerical and many more. Okay, so students, वीडियो को आपको देखना है और लास्ट तक यू हैव टू वॉच दिस वीडियो टिल लास्ट. ओके, तो स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है. लिसन टू मी. एज यू कैन सी ऑन द बोर्ड, fill in the blanks. एक्चुअली फर्स्ट इज दैट व्हाट इज fill in the blanks. ये fill in the blanks होता क्या है? I know and you know very well what is that. In spite being of I will discuss. Okay, देखिए what is that actually. First of all, we have to understand what is the instruction. Actually, I am telling you instructions about the fill in the blanks. There are three sentences: first sentence, second sentence, and third sentence also. Okay, and there are 5 options. First is A, B, C, and D and E also. There are 5 options, and each options have 2 words. For example, first blunt and decide, and B frank shrink, and B honest hesitate, and C sincere fluctuate, and D is frank swing, and E also candid and vacillate. Students, you have to listen carefully. Okay, so first of all, what is the instructions of these this fill in the blanks? Okay, so first actually you have to choose what option is suitable, which option is suitable for these 3 sentences. Actually, first word we have to fill first 2 sentences, and second word we have to fill in third sentences. मतलब first option is to be fitted in first 2 sentence, and second option is to be fitted in third sentence. Okay, मतलब क्या है बच्चों, आपका जो फर्स्ट ऑप्शन है, यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन क्या है? ब्लंट है, ऑनेस्ट है, सिंसियर है, फ्रैंक है और कैंडिड है. आपको ये जो फर्स्ट ऑप्शन है वो फर्स्ट 2 सेंटेंस में क्या करना है? सुटेबल है, वो फिट करना है कौन सा फर्स्ट 2 सेंटेंस में आएगा, एंड थर्ड जो सेकंड ऑप्शन है वो कौन थर्ड सेंटेंस में कौन सा फिल करेंगे हम लोग. ओके, तो स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस सी. आइए देखते हैं, हम पढ़ लेते हैं पहले. देखिए फर्स्ट ऑप्शन, फर्स्ट सेंटेंस इज दैट sometimes my mother talks in such a. अब स्टूडेंट्स, यहाँ पर ये रहा आपका पास क्या? fill in the blank. यहाँ पर आपको फिल करना. फिल मैंने जैसे बताया आप लोगों को, क्या ब्लंट आएगा या फिर फ्रैंक आएगा या ऑनेस्ट आएगा या कैंडिड आएगा या फिर क्या सिंसियर आएगा. ओके, sometimes my mother talks in such a fill in the blanks manner that I am impressed by the things she shares. And second sentence is that when the actress was questioned about her co-star, she had nothing back and gave a fill in the blanks response. Third sentence is also, if you ask Pooja to choose a restaurant for lunch, she will. And यहाँ पर आपको fill करना है. fill in the blanks है between restaurants forever, हमेशा की तरह. तो स्टूडेंट्स, पहले तो हम लोग को ये समझना है कि ये जो आपका फिलर्स है, फिल इन द ब्लैंक है, वो क्या बात कर रहा है. ओके, एंड फर्स्ट ऑप्शन क्या है? ए है आपके पास ब्लंट. ब्लंट का मतलब यू नो वेरी वेल. ब्लंट मतलब स्टूडेंट्स आउट स्पोकन, एक ऐसा पर्सन जो क्या होता है? आउट स्पोकन होता है, आउट स्पोकन, मूव फट जिसे आप लोग कहते हैं. एंड ए का जो सेकंड ऑप्शन क्या है? डिसाइड. आई नो वेरी वेल, यू नो द मीनिंग ऑफ डिसाइड. आप डिसाइड का मीनिंग सब अच्छे जानते हैं भाई, वर्ब है. Okay, and B option is honest, you know very well.
एक ऐसा पर्सन जो ऑनेस्ट होता है, यू आर ऑनेस्ट, आई एम ऑनेस्ट। एंड हेजिटेट, हेजिटेट यू नो समझते हैं आप लोग, हिचकना, भाई किसी बात को कहते हुए जब लोग हिचकते हैं उसे क्या बोला जाता है, हेजिटेट, दैट इज आल्सो वर्ब। एंड सी सिंसियर, हम लोग कहते हैं ही इज ए सिंसियर पर्सन, यू आर ए सिंसियर मैन। तो स्टूडेंट सिंसियर समझ गए ना, जो चीजों को बड़े ही देखभाल तरीके से लेता है, बहुत अच्छे तरीके से लेता है, वो कौन होता है, वो सिंसियर होता है। एंड फ्लक्चुएट का मीनिंग क्या है, हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रिसिटी इज फ्लक्चुएटिंग, भाई इलेक्ट्रिसिटी क्या हो रही है, फ्लक्चुएटिंग हो रही है, ओके मतलब कम और ज्यादा होना, कभी कम, जैसे आजकल दिस डेज इलेक्ट्रिसिटी बड़ी प्रॉब्लम कर रही है, तो क्या हो रही है, फ्लक्चुएटिंग हो रही है। एंड फ्रैंक, यू नो वेरी वेल, हम कहते हैं इज अ फ्रैंक पर्सन, मतलब सारी बातों को अच्छे से फ्रैंकली बोल देता है, ठीक है, क्लियरली। एंड स्विंग, नो वेरी वेल, एक टर्म है घूमना, स्विंग, जैसे बॉल को हम लोगों ने पढ़ा भी है कि बॉल बहुत ज्यादा स्विंग हो रही है ना पिच पर। कैंडिड, यू नो वेरी वेल, आउटस्पोकन पर्सन। ट्रूथफुल कह सकते हैं, यू कैन से ट्रूथफुल और स्ट्रेट फॉरवर्ड, एक ऐसा पर्सन जो ट्रूथफुल होता है और स्ट्रेट फॉरवर्ड है, अपनी बात को एकदम अच्छे से कह सकता है, तो उससे हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रूथफुल, या फिर क्या स्ट्रेट फॉरवर्ड। एंड वैसिलेट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वैसिलेट, वैसिलेट का मीनिंग क्या है। अब देखो स्टूडेंट्स, अगर मीनिंग नहीं पता तो फिल इन द ब्लैंक्स नहीं होगा, तो उससे पहले तो यू नो द मीनिंग वेरी वेल। वैसिलेट, व्हाट डू यू लाइक, कौन बताएगा मुझे। देखिए वैसिलेट का मतलब है अल्टरनेट, क्या अल्टरनेट और वेवर डिफरेंट ओपिनियंस। देखिए मैं क्या बोल रहा हूं, अल्टरनेट और वेवर डिफरेंट ओपिनियंस, मतलब क्या है, मतलब ये आदमी जो है थोड़ा सा क्या है, अल्टरनेट कर देता है, मतलब ये भी हो सकती है ओपिनियन, ये भी हो सकती है, डिफरेंट ओपिनियंस, अलग अलग ओपिनियंस में वो क्या है, थोड़ा सा डिफरेंट है, अलग अलग है, मतलब कोई डिफरेंट ओपिनियन नहीं है उसकी, ओके। तो स्टूडेंट्स फर्स्ट में हम लोग देखते हैं, जल्दी से देखिए फर्स्ट सेंटेंस में क्या आना चाहिए। समटाइम्स कह रहा है, आई एम एक्सप्लेनिंग, समटाइम्स माय मदर टॉक्स, कह रहा है कि कभी कभी मेरी जो मदर है वो क्या करती है, बातचीत करते हैं सच क्या एक ऐसे मैनर में, कैसे मैनर में, दैट क्या है इम्प्रेस्ड, यार मैं इम्प्रेस हो जाता हूँ, मैं जो ना मुझे शर्म लगने लगती है, वो ऐसे मैनर में बात करती है बाय द थिंग्स, मतलब ऐसी चीजों के द्वारा, बाय द थिंग्स शी शेयर, जो शेयर करती है उससे मैं क्या हो जाता हूँ, इम्प्रेस हो जाता हूँ, मुझे बहुत शर्म लगती है, लज्जित हो जाता हूँ मैं। सेकंड कह रहा है व्हेन द एक्ट्रेस, जब एक्ट्रेस से पूछा गया, वाज क्वेश्चन, दैट इज अ पैसिव वॉइस, वो के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो कह रहा है कि जब एक्ट्रेस से पूछा गया, क्वेश्चन पूछा गया था, तो क्या हुआ था, अबाउट हर को स्टार, उसके को स्टार के बारे में, मतलब को स्टार मतलब बच्चों उसका जो क्लीग है, को स्टार है, जैसे आप लोग सुनते हैं कैटरीना है, कैटरीना को स्टार कौन है, सलमान खान है, सलमान खान का कौन है कैटरीना, या फिर कि अक्षय कुमार का जो भी फिल्म में एक्टर या एक्ट्रेस है जो भी उसके साथ है उसको स्टार बोला जाता है ना। कह रहा है कि जब पूछा गया एक्ट्रेस से उसके को स्टार के बारे में, तो सी हैड नथिंग बैक, दैट इज अ फ्रेज, सी हैड नथिंग बैक एंड गिव अ, सी हैड नथिंग बैक मतलब उसने कुछ वापस किया ही नहीं, कुछ रिस्पॉन्स ही नहीं है, सी हैड नथिंग बैक, सी हैड नथिंग बैक मतलब उसने कुछ रिएक्शन नहीं दिया, मतलब वो न्यूट्रल नहीं, सी हैड नथिंग बैक एंड गिव अ, समझ पा रहे हैं ना, उसने कुछ वापस नहीं किया, बल्कि क्या किया, मतलब उसको हेल्प नहीं की, जब क्वेश्चन पूछा गया तो उसके बारे में नहीं बताया उसने, सी हैड नथिंग बैक, उसके बारे में उसने उसको बैक नहीं किया, है ना, एंड गिव अ, क्या किया, दिया क्या, एक रिस्पॉन्स दिया। अब को कैसा रिस्पॉन्स दिया आप देखते हैं बच्चों। थर्ड क्या है, इफ यू आस्क पूजा, अगर तुम पूजा से पूछते चूज रेस्टोरेंट, अगर तुम पूजा से पूछ लेते रेस्टोरेंट को चूज करने के लिए कि वो रेस्टोरेंट को वो चूज करे लंच के लिए, तो क्या करेगी, अगर तुम पूछते हो, सॉरी अगर तुम पूजा से पूछते हो रेस्टोरेंट को चूज करने के लिए, कौन सा रेस्टोरेंट चूज किया जाए, कौन से रेस्टोरेंट में हमें जाना है, तो सी विल, वो क्या करेगी, फिल इन द ब्लैंक बिटवीन रेस्टोरेंट्स फॉरएवर, वो हमेशा की तरह रेस्टोरेंट के बीच क्या होगा, अब पता नहीं क्या होगा, यहां पर आपको फिल करना है बिटवीन रेस्टोरेंट्स, मतलब एक तरह से क्या, हमेशा की तरह, मतलब जब भी पूछते हो, अगर पूछते हो तो क्या हो जाती है, वो हमेशा की तरह पता नहीं क्या हो जाती है। अब देखिए यही हमें यहां पर फिल करना है। फर्स्ट अगर सपोज करिए मैं फर्स्ट वर्ड ब्लंट फिल कर देता हूं, देख लेते हैं एक मिनट के लिए। देखिए एलिमिनेट करने का सबसे अच्छा मेथड मैं आप लोगों को पहले तो बता देता, अगर आप लोगों को इन फिफ्थ 5 ऑप्शन से 5 में से एलिमिनेट करना है, अगर हमने कहा समटाइम्स माय मदर टॉक्स इन सच अ ब्लंट मैनर, मतलब एक आउटस्पोकन मैनर में बात करती है, मुंहफट वाले में बात करती है, तो मैं इंप्रेस हो जाता हूं जो मुझसे वो शेयर करती है। फिर इसका मतलब क्या है, ब्लंट कहां पर आना चाहिए, यहां पर भी आना चाहिए, गिव ए ब्लंट रिस्पॉन्स, मतलब मुंहफट वाला रिस्पॉन्स दिया उसने, किसने, जब एक्टर से पूछा गया। तो फिर क्या, सी विल डिसाइड बिटवीन, मतलब इफ यू आस्क, अगर तुम पूछते हो तो हमेशा की तरह वो डिसाइड करती है,
देखिए डिसाइड वाला ऑप्शन सुटेबल है ही नहीं, क्योंकि रीजन क्या है, क्योंकि देखिए क्या बता रहा है, ये कंडीशनल सेंटेंस है। इफ यू आस्क पूजा, अगर पूजा से आप पूछते हो रेस्टोरेंट के बारे में, लंच आने के बारे में, कौन से रेस्टोरेंट में चलना है, तो हमेशा की तरह वो डिसाइड करती है नहीं। तो मतलब क्या हुआ, क्योंकि जब पूछते हो तो फिर डिसाइड का तो कोई मतलब ही नहीं है। स्टूडेंट्स यहाँ पर देखिए, अगर यहाँ पर हम लोग फिल करें क्या, बी ऑप्शन ऑनेस्ट, समटाइम्स माय मदर टॉक्स इन सच अ ऑनेस्ट मैनर, मतलब क्या है, उसकी मदर झूठी है क्या, वो लायर है क्या, नहीं ना, वो झूठ थोड़ी नहीं बोलती है। तो कह रहा है ऑनेस्ट और क्या, सी विल हेजिटेट बिटवीन रेस्टोरेंट्स, मतलब वो हेजिटेट होगी रेस्टोरेंट के बीच में। हेजिटेट होने वाला तो कोई कंडीशन ही नहीं है, क्योंकि रीजन क्या, अगर तुम पूछते हो तो हेजिटेशन मतलब एक्चुअली हेजिटेट हम तब होते हैं जब हमें किसी बात के बारे में ना, देखिए मैंने कहा जब हमें शर्म लगती है तो हेजिटेशन हो जाती है, भाई मुझे वहां जाने में बड़ी हेजिटेशन होती है, तो आई हेजिटेट, ठीक है ना, मैं हेजिटेट होता हूँ जब भी मुझे कोई कुछ पूछता है, तो मतलब क्या है भाई, उससे अगर कोई क्वेश्चन पूछा है तो हेजिटेशन हो जाती है, बट डर लगने लगता है। तो यहाँ पर वो क्वेश्चन थोड़ा ना पूछ रहा है, देयर इज नॉट एनी क्वेश्चन, तो क्वेश्चन नहीं तो हेजिटेट का कोई मतलब ही नहीं है। तो स्टूडेंट्स फ्रैंक यूज करें, कैंडिड यूज करें, सिंसियर, देखिए सिंसियर तो वैसे ही खराब हो जाता है, क्यों, और फ्लक्चुएट यहाँ पर आएगा ही नहीं, क्योंकि देखिए अगर आपने फ्लक्चुएट भरा तो फ्लक्चुएट थर्ड में आना चाहिए। If you ask Pooja to choose a restaurant for lunch, she will क्या fluctuate, बच्चों fluctuate इलेक्ट्रिसिटी होती है, पर्सन फ्लक्चुएट नहीं होते हैं। ओके, तो पहली बात तो ये सी वाला ऑप्शन एकदम खत्म हो गया आपके पास। स्विंग वाला भी ऑप्शन देखिए डी एकदम रॉन्ग है, क्योंकि बच्चों सी विल स्विंग मतलब वो घूमेगी, बोल थोड़ा ही ना भाई घूमेगी, बताइए मुझे बोल है क्या जो घूमेगी, नहीं ना, तो पर्सन के लिए स्विंग वाली फॉर्म नहीं होगी, बॉल स्विंग होती है एक्सेट्रा, कोई भी चीज है जो आपने फेंक कर मारा किसी को तो वो स्विंग हो जाता है। तो देखिए बच्चों दो ऑप्शन यहां पर खत्म हो गए, सी और क्या डी। अब आपके पास तीन ऑप्शंस हैं, और ब्लंट या फिर ऑनेस्ट या फिर क्या कैंडिडेट। अब क्वेश्चन ये है कि फिल क्या करें। अगर आप देख रहे हैं हेजिटेट और डिसाइड अच्छा ऑप्शन नहीं है थर्ड के लिए। अगर आप सपोज करो फर्स्ट में आप यहाँ पर ब्लंट आ जाता है, सेकंड में ब्लंट आ जाता है, और फिर डिसाइड वाला ऑप्शन सी विल डिसाइड, मतलब वो डिसाइड करेगी। वैसे भी कंडीशनल सेंटेंस है और कंडीशन में डिसाइड नहीं होता, क्योंकि अगर तुम पूछते हो पूजा से रेस्टोरेंट जाने के लिए, तो अगर पूछते हो तो वो डिसाइड करती है, नहीं ना, पूछने से क्या मतलब है, मतलब क्या है, देखिए डिसाइड और हेजिटेट दोनों ऑप्शंस रॉन्ग है, तो बेस्ट ऑप्शन देखिए अकॉर्डिंग टू मी या अकॉर्डिंग टू यू भी, देखिए मी नहीं, अकॉर्डिंग टू दिस क्या फिल इन द ब्लैंक, बेस्ट ऑप्शन विल बी ई। क्यों होगा, जरा ध्यान सुनिए, क्योंकि कैंडिड और बच्चों ब्लंट और फ्रैंक ये तीनों एक दूसरे के सिनोनिम्स हैं, लेकिन फ्रैंक क्यों नहीं होगा, बिकॉज स्विंग जो है वो थर्ड में नहीं आएगा, दैट इज नॉट फिट फॉर हियर। थर्ड के लिए सेकंड स्विंग जो है इज नॉट फिट, वो फिट नहीं है। ओके, तो स्टूडेंट्स यहां सिंसियर और फ्लक्चुएट मैंने आई फॉरबैट, सॉरी मैंने मना किया है, आई हैव फॉरबिडन। ओके, तो बिल्कुल नहीं आएगा। तो अब देखिए थर्ड ई ऑप्शन इस राइट क्यों है, Sometimes my mother talks in such a candid manner. Candid what mean by candid? Candid का मतलब होता है truth and straightforward। जब एकदम सच्चाई से बिल्कुल सीधे सीधे बोलती है मेरी मदर, तो मैं इम्प्रेस हो जाता हूँ चीजों को जो मुझसे शेयर करती है। ठीक है, सीधा सीधा बातों पर वो बात करती है तो मैं क्या हो जाता हूँ, इम्प्रेस हो जाता हूँ। और सेकंड क्या है मेरे पास, when the actor was questioned about her co-star, he had nothing back and gave a क्या candid response। अब रिस्पॉन्स वाली बात है, देखिए अकॉर्डिंग टू रिस्पॉन्स जो है डिसाइड नहीं, सॉरी ब्लंट नहीं आएगा, क्योंकि मैंने क्या कहा, जो फर्स्ट ऑप्शन है इज टू बी फिटेड फर्स्ट टू सेंटेंसेस, ओके, एंड सेकंड ऑप्शन इज टू बी फिटेड इन थर्ड सेंटेंस। तो बच्चे मेरी बात समझ में आई होगी जो मैं बोल रहा हूं। तो यहां पर देखिए ब्लंट बिल्कुल भी नहीं आएगा, ब्लंट रिस्पॉन्स दैट इज रॉन्ग। और स्टूडेंट्स देखिए क्या आएगा, कैंडिड इज द सूटेबल वर्ड, भाई कैंडिडेट रिस्पॉन्स देती है, और कैंडिडेट अगर यहां पर आया तो बच्चों सेकंड में क्या आएगा, सिविल वेस्ट। देखिए यहां पर इसकी सेंस समझिए, रेस्टोरेंट्स जो है उनके बीच वो क्या हो जाते हैं, वो डिफरेंट ओपिनियंस हो जाती है, मतलब वो कंफ्यूज हो जाती है कि भाई इस रेस्टोरेंट में जाना या फिर उस रेस्टोरेंट में जाना है, वी हैव टू गो मे दिस या फिर दैट, हम इसमें जा सकते हैं उसमें जा सकते हैं, तो कंफ्यूज हो जाती है। तो इसलिए देखो मैंने कहा इफ यू आस्क पूजा, अगर पूजा से पूछती हो रेस्टोरेंट जाने के लिए, लंच करने, जब हम लंच के लिए जाते हैं तो हमेशा वो क्या हो जाती है, वो रेस्टोरेंट के बीच क्या हो जाती है बच्चे, वैसी लेट हो जाती है, मतलब उसकी डिफरेंट ओपिनियंस हो जाती है, भाई इसमें चले ये वाला अच्छा है, नहीं उसमें भाई ब्रेकफास्ट अच्छा मिलता है, उसमें लंच, भाई लंच के लिए जाना है, भाई उसमें ना भाई क्या उसमें जो है वाटर अच्छा मिलता है, फिर उसमें जो है वेजिटेबल अच्छी आती है या उसमें चपाती अच्छी आती है, तो इन चीजों को लेकर वेरिएट कर जाती है, डिफरेंट ओपिनियंस हो जाती है। तो राइट आंसर विल बी क्या, कैंडिडेट और क्या वैसिलेट। मतलब फर्स्ट जो कैंडिडेट आएगा वो फर्स्ट टू में आएगा,
एंड थर्ड में हम लोग क्या करेंगे, वैसिलेट करेंगे। आई होप सो स्टूडेंट्स, देखिए दिस वीडियो इज वेरी दिस वीडियो इज विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू, ओके, फॉर IBPS, बैंकिंग हो चाहे कोई भी एग्जाम है। स्टूडेंट्स अगर आप लोग इस तरह की वीडियो मुझसे पढ़ना चाहते हैं, इस तरह के पैराफ्रेज आप लोग चाहते हैं कि मैं और बनाऊं, तो कमेंट में बच्चों यस लिखिए। और जितना आप ज्यादा इस वीडियो को बच्चों, जितना आप लोग इस वीडियो को ज्यादा देखेंगे और जो भी मुझे कमेंट के थ्रू, अगर आप मुझे कमेंट के थ्रू आप मुझे रिस्पॉन्स करेंगे, तो मैं इस पर ही, फिलर्स पर ही काफी सारी वीडियो आपको दूंगा, ओके। और स्टूडेंट्स अगर वीडियो अच्छी लगी है और ऐसे फिलर्स मुझसे पढ़ना चाहते हैं तो बच्चों कमेंट करें। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, ओके बच्चों, थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू।